Good morning to all of you. So students, today's topic is relation and its properties. So what is a relation? We can say that let A and B be two sets, then any subset R of the Cartesian product, that is A cross B, is a binary relation from set A to set B. Symbolically, it is represented as R is subset of this ordered pair, that is, or we can say this Cartesian product, that is A cross B. And we defined it as R is equal to ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. So we say that if this ordered pair XY belongs to R, then we write as X is related to Y. Similarly, if this ordered pair XY does not belongs to R, then we write that X is not related to Y. So if both the sets are equal, that is if A is equal to B, then R is a relation, or we can say binary relation on that set. So for example, if we have the set A in which we have these 5 elements, similarly B in set B we have these elements. Now we will define a relation R from set A to B as ordered pair XY such that X belongs to A and Y is equal to 2X plus 3 belongs to B. So now here R is equal to, when I will put the value of X is equal to 1, I will get the value of Y is equal to 5 from this relation. So similarly, by putting X is equal to 2, Y is equal to 7, and putting X is equal to 3, Y is equal to 9, and similarly putting Y is equal to 4, Y is equal to X is equal to 4, Y is equal to 11, and putting X is equal to 5, Y is equal to 13. So this will become the ordered pair, and this relation R is basically the subset of this Cartesian product, that is A cross B. So we say that R is equal to 1 5, ordered pair 2 7, then 3 9, then 4 11, and 5 13. So this R is basically the subset of A cross B, and this forms the relation on the set A that is from the set A to the set B. सो हम एक रिलेशन हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास क्या होंगे, कोई दो सेट्स होंगे, और अगर हम कोई सबसेट आर लेंगे किनका, इन जो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, दैट इज देन एनी सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कौन सा ए क्रॉस बी इज a binary relation या relation on that set we can say on the set A to set B. So symbolically हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये सबसेट R होगा, जो कि हमने कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहे थे, हम बेसिकली रिलेशन डिफाइन कर रहे थे, हमारे पास दो सेट्स थे और हम क्या कर रहे हैं, कोई सबसेट ले रहे हैं किसमें, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में. सो वो क्या करेगा, एक रिलेशन फॉर्म करेगा, वो कहाँ से, सेट A से लेके सेट B तक, और उसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. और डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये A क्रॉस B है, दिस मीन्स इट विल कंटेन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ elements, then one element is from this set A and similarly other element is from set B. So we will write it as X ordered pair XY where X belongs to set A and Y belongs to set B. So this is basically the relation which it forms from set A to set B. So we say that हम कहेंगे कि कोई ordered pair XY है, वो उस R से मीन्स रिलेशन से कैसे रिलेट करेगा, उसको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, हमने लिखना है कि if XY belongs to R, अगर ये जो ordered pair है वो उस रिलेशन में है, then we write that X is related to Y. Similarly, if XY does not belongs to R, then we write that X is not related to Y. So अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट सेम होंगे, then R is a relation, or we can say binary relation on that set. So next is the domain and range of the relation. So basically domain और range में क्या होता है कि अगर हमारे पास R एक relation है from set A से set B तक, so जो first components का जो set होगा means A, उसको हम क्या बोलेंगे, domain of R. Similarly जो दूसरे second components of जो R होंगे of the second components of elements of R, उसको क्या हम बोलेंगे, range of R. So if R is a relation from set A to set B, then the set of first components of the elements of R is called the domain of R, and the set of second components of the elements of R is called the range of R. So domain of R अब किस तरीके से डिफाइन करेंगे, A such that ordered pair AB belongs to R. Similarly range of R कैसे होगा, B such that ordered pair AB belongs to R. So the whole set जो B होगा उसको हम क्या कहते हैं, co-domain of the relation.
एंड अगर आर हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से सेट ए पे, मतलब सेम इटसेल्फ पे, देन ऐसे जो हमारे पास जो आर होगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज द रिलेशन ऑन ए. So thus the relation on a set A is defined as any subset of A cross A. सो एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट है 1 2 3, इसके ऊपर हमने इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट मींस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज ए क्रॉस ए. वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स. सो हमने पहले 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, इसी तरीके से 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ. सो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इसके ऊपर हमने एक रिलेशन कैसा डिफाइन कर दिया कि ये जो आर है दिस इज इक्वल टू, इसमें कैसे एलिमेंट्स है 1 2 2 2 3 2 एंड 3 3. अब यहां से क्या शो होता है कि जो ये आर है ये तो सबसेट है ए क्रॉस ए का. अब हमें ये देखना है क्या ये रिलेशन है या नहीं है. अब अगर हम पहले ये ऑर्डर्ड पेयर देखें 1 2 को, सो 1 क्या कर रहा है, 2 को बिलोंग कर रहा है, सॉरी 1 जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है, मींस जो ऑर्डर्ड पेयर 1 और 2 है वो आर को बिलोंग कर रहा है. सो ये हमारे पास जो है यहां से ये चीज क्या कर जाएगा, यहाँ पे ये इसका एक रिलेशन बन जाता है. मगर अगर हम देखेंगे एलिमेंट 1 जो 1 इज रिलेटेड टू 1, अगर हम देखेंगे जो ये 1 इज जो यहाँ पे 1 इज 1 एंड 1 दैट इज ऑर्डर्ड पेयर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ये क्या है 1 जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है 1 के साथ, क्योंकि वो इस आर में लाई नहीं कर रहा है. वो ए क्रॉस ए में तो लाई कर रहा है मगर इस आर में नहीं कर रहा है. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ऐसा सबसेट हमने लेना है जो क्या करे, जो आर, क्योंकि आर एक ऐसा सबसेट है किसका, इस ए क्रॉस ए का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तभी वो क्या करेगा, रिलेशन डिफाइन करेगा. तो मींस आर में जो ये मैंने एक सबसेट जो एक ऑर्डर्ड पेयर 1 2 लिया, ये यही जो 1 2 है ये ए क्रॉस ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये आर इसका सबसेट हो गया. मगर अगर हम दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का देखेंगे, अगर 1 1 को लेके चलते, 1 1 ए क्रॉस ए को तो बिलोंग कर रहा है मगर आर को नहीं कर रहा, तो यहां से क्या शो होगा कि ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे. इसी तरीके से जो डोमेन ऑफ आर होगा दैट इज इक्वल टू 1 2 3, और जो रेंज ऑफ आर है, क्योंकि वो 1 क्या है 2 को मैप कर रहा है, 2 किसको है अगेन 2 को मैप कर रहा है, तो मींस यहाँ पे जो इसका रेंज बनेगा दैट विल बी ओनली 2 एंड 3. सो ये आ जाएगा आपके पास 2 एंड 3. सो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, सेम हमने एक और सेट ले लिए और उसके ऊपर ये एक क्रॉस उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट के बाद इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया है. सो क्लियरली जो आर है वो क्या कर रहा है, दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. सो यहाँ पे 1 जो 3 है वो रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, और 1 3 बिलोंग्स टू आर, मगर जो 1 4 है वो क्या कर रहा है, वो रिलेट नहीं कर रहा है आर को. सो सेम यहाँ पे जो डोमेन होगा दैट विल बी 1 2 एंड रेंज क्या बन जाएगा 3 4. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन. अब बेसिकली हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रोस्टर मेथड से भी कर सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड से भी करते हैं, इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं. अब हमें इसमें बेसिकली कैसे करते हैं, देखिए कि अगर हमारे पास ये तो हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ गया सेट्स का कि 1, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट डिफाइन किया ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी कितना है 4 और 5, और उसके ऊपर रिलेशन क्या डिफाइन किया, 2 किससे रिलेट कर रहा है 4 से, और 2 किससे रिलेट कर रहा है 5 से, 3 किसको रिलेट कर रहा है 5 से. सो यहां से इसका अगर इमेज से बना के देखेंगे तो 2 किसको कर रहा है 4 को रिलेट, तो यहां से एरो शो कर दिया. 2 किसको कर रहा है रिलेट 5 को, तो अगेन एरो आ गया, और 3 किसको रिलेट कर रहा है 5 से, तो अगेन ये इसका मैपिंग बना दे. तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन तो एक मैपिंग ही है, एक फंक्शन है. सो अब जब हम इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है वो उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उस जगह पे हमने क्या लिखना है 1 से उसको रिप्रेजेंट करना है. मगर अगर वो जो है मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा तो उस जगह पे हमने 0 लिखना है. अब जैसे देखेंगे 2 और 2 तो 4 से रिलेटेड था, तो यहां से हमने सबसे पहले एक टेबल बनाना, यहाँ पे आर मीन्स उसका रिलेशन करना, ये हमारे पास आ जाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स और ये सेट ए के एलिमेंट्स. अब हम बोल रहे हैं कि 1 जो है वो रिलेट कर रहा है 4 से, अगर हम देखेंगे रिलेशन में तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिखना है 0 लिखना है. इसी तरीके से 1 रिलेट कर रहा है 5 से, नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिखा 0. अब अगर हम देखेंगे 2 किसको रिलेट कर रहा है 4 से, अब 2 जो रिलेट कर रहा है 4 से बिल्कुल कर रहा है क्योंकि वो इस रिलेशन में फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से. इसी तरीके से 2 किसको रिलेट कर रहा है 5 को, तो हमने 1 लिखा. अगेन 3 किसको रिलेट कर रहा है 4 को, मगर वो इसमें नहीं है सो वहां पे 0 आ जाएगा. मगर 3 किसको रिलेट कर रहा है 5 से, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा. तो क्लियरली
सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो 1 और 4 है वो इस रिलेशन को में नहीं बिलोंग कर रहे हैं और इसलिए हमने वहां पे 0 लिख लिया, और जो रिलेशन को फॉर्म कर रहे हैं मींस उसमें को बिलोंग कर रहे हैं वहां पे हमने रिप्रेजेंट इसको कर दिया 1 से। सो नेक्स्ट इज इफ A is a set and it has n elements, then the Cartesian product that is A cross A has n square elements. Similarly अगर A में हमारे पास m elements होंगे और B में n elements होंगे तो उनके Cartesian product में 2 raised power mn elements होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्टी रिलेशन। सो हम कहेंगे अगर जो रिलेशन आर है वो इज इक्वल टू फी आ जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इफ आर इज इक्वल टू फी देन आर इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए देन आर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। सो नोट बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। सो अब हम इनके ऊपर एक एग्जाम्पल शो कर लेते हैं कि कंसीडर द रिलेशन। ये मैंने रिलेशन है जो आर है वो कहाँ पे सेट ए पे डिफाइन किया और ये सेट ए है, इसमें ये 5 एलिमेंट्स है और उसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया दैट इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 16। अब अगर हम देखेंगे अगर कोई भी 2 एलिमेंट सेट ए के लेंगे ना तो उन दोनों का डिफरेंस कभी भी 16 के इक्वल नहीं आएगा। तो सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नाउ ए माइनस बी is not equal to 16 for any 2 elements of set A. So therefore this ordered pair does not belongs to, or we can say A is not related to B. So this implies that R does not contain any element of A cross A. So यहाँ से R क्या आ गया, empty set आ गया। तो this means जो वो R अगर वो set empty आ गया जो उस पर relation define कर दे that is the empty relation on that set। इसी तरीके से एक यूनिवर्सल सेट की हमने एक एग्जांपल दी है, जैसे ये सेट ए दिया हुआ इसमें 6 एलिमेंट्स है और उसको डिफाइन किससे किया, ये रिलेशन इस पे शो किया कि दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर ये जैसे हमें पता है कि अगर मॉडुलस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ए बी इन ए, सो क्या होगा, दिस इंप्लाइज जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसको बिलोंग करेगा, आर को। सो वहां से क्या आ जाएगा, फॉर ऑल अगर हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो अगर आर को बिलोंग करा तो क्योंकि आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का तो वो किसको बिलोंग करेगा, वो ए क्रॉस ए को भी बिलोंग करेगा। सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए को क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, सो हेंस आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन। सो मीन्स अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो कहां से डिफाइन कर रहे हैं हम ए से बी तक, तो जो आर इनवर्स होगा वो कहां से डिफाइन करेंगे, बी से लेकर ए तक। सो यहाँ पे इसको हमने कैसे लिखा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स एंड इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए एंड इज डिफाइंड एज आर इनवर्स दिस इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर बी ए such that a ordered pair AB belongs to R. So AB belongs to R if and only if BA belongs to R inverse. So domain of R, this is equal to range of R inverse and range of R is equal to the domain of R inverse. So यहाँ से क्या हमारे पास आ जाता है, inverse relation. Next is the identity relation. अगर हमारे पास कोई set A है और उस पर हम relation कैसा define कर रहे हैं, IA such that ordered pair AA such that A belongs to A on set A is called the identity relation on A. तो means अगर A क्या करेगा, A से ही relate करेगा खुद के साथ ही, means उन दोनों में आपस में relation होंगे, दोनों एक ही element का अपने साथ ही, ऐसे relation को हम क्या basically कह देते हैं, identity। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन की, ये इसमें कितने टाइप्स है हमारे पास, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन इट इज सिमेट्रिक, देन इट इज इररिफ्लेक्सिव, देन इट इज ट्रांजिटिव, देन इट इज एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। अब बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जो डिफाइन कर रहे हैं हम सेट ए पे, सो हम उसको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं कि अगर क्या होगा, जो एक्स है वो रिलेट करेगा एक्स से। So we will write that ordered pair XX belongs to R for all X in A. Then we say that this relation is a reflexive relation. So अब हमारे पास एक एग्जाम्पल, अगर हमने सेट A डिफाइन किया 1 2 और उसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या लेना है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो वो किसके साथ लेंगे, खुद के साथ ही, मीन इटसेल्फ, मीन जो सेट A है उसका सेट A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो जितने ये सारे मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए हैं। सो अब इसके ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूँ जिसमें ये एलिमेंट्स है। तो अब हम क्या कहेंगे, जो
ये आर है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन में कहता है कि एक्स किसको रिलेट करना चाहिए, एक्स से, तो यहाँ पे 1 किसको रिलेट कर रहा है, 1 से। सिमिलरली 2 किसको रिलेट कर रहा है, 2 से। 3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। सो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। नेक्स्ट इज द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। अगर क्या हो, ए क्या हो, वो रिलेट नहीं करना चाहिए ए से, या हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए वो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इन ए। जैसे अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए हमारे पास सेट है 1 2, उसके ऊपर रिलेशन हमने डिफाइन किया 1 2 और 2 1। अगर हम देखेंगे ये जो आर है ये इररिफ्लेक्सिव, बिकॉज जो 1 1 है और 2 2 है, ये क्या कर रहा है, इस आर को बिलोंग नहीं कर रहा। मींस 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2। सो सिमिलरली अगर हमारे पास सेट ए इज इक्वल टू 1 2 है, उसके ऊपर रिलेशन ये डिफाइन किया, तब हम कहेंगे आर क्या है, नॉट इररिफ्लेक्सिव है। अगर क्या हो जाएगा ये, जैसे क्यों ये नॉट इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें 2 इज रिलेटेड टू 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। सो इसी तरीके से आर यहाँ पे अगर हम ये वाला केस देखें कि मान के चलो इस रिलेशन में 1 1 नहीं है, सो ऐसे में आर क्या बन जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सब डिफरेंट है ये, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमारे पास कोई रिलेशन है आर जो हमने डिफाइन किया ऑन सेट ए, हम कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, इफ ए इज रिलेट करना चाहिए बी से, इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। सो वी कैन राइट, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सारा ले लिया है और हमने इस पे एक आर रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स है, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर, देन ऑर्डर्ड पेयर 1 3, देन ऑर्डर्ड पेयर 3 1। एक और रिलेशन हमने R1 से डिफाइन किया, इसमें कैसे एलिमेंट्स है 1 2 1 3 और 3 1। अब अगर हम देखेंगे ये जो R और R1 है ये क्योंकि सबसेट है किसके, A क्रॉस A के, तो यहां से क्या बन रहा है कि ये रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब अगर हम रिलेशन R से देखेंगे तो 1 जो है वो 3 को रिलेट कर रहा है और 3 किसको रिलेट कर रहा है, 1 को कर रहा है, तो मीन्स ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। और अगर हम R1 की बात करें, 1 जो है 2 को तो रिलेट कर रहा है, मगर जो 2 है वो 1 को रिलेट नहीं कर रहा है, मींस वो इस R1 में फॉल नहीं कर रहा है, तो मीन जो R1 है वो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। सो नेक्स्ट इज द एसिमेट्रिक रिलेशन। हम कहेंगे कि a relation R on a set A is asymmetric if whenever A is related to B then B is not related to A। हम कहते हैं कि asymmetric relation क्या होगा, अगर जब भी A क्या होगा वो B से रिलेट करेगा तो क्या होगा, B A को रिलेट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिए और हम इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया लेस वाला। सो इसमें क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि इफ A is less than B तो देन क्या होगा, B शुड नॉट बी लेस देन A। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस रिलेशन लेस इज बेसिकली एसिमेट्रिक। Next definition is of or we can say the next property is transitive relation. So a relation R on a set A is called a transitive relation if A is related to B and B is related to C, this implies then A is related to C। So अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है जो A से हैं, तो अगर A क्या करेगा, B को रिलेट करेगा और B किसको करेगा, C को रिलेट करेगा। जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट को रिलेट करेगा, मीन्स A किसको रिलेट करेगा, C को करेगा। सो इसको जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 और उसका पहले हमने सेम जैसे प्रोसीजर होता है, पहले उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और उसके ऊपर ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया। एक रिलेशन में मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए और दूसरा रिलेशन R1 लिया है और उसमें ये एलिमेंट्स लिए। अब जो ये R1 और R है ये बोथ इसके सबसेट्स है किसके, A क्रॉस A के, तो ये रिलेशन तो फॉर्म करेंगे ही। अब हमने ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन कर रहे हैं फॉर्म की नहीं। अब अगर हम देखेंगे जो 1 और 2 है वो किसको, 1 है वो 2 को रिलेट कर रहा है और 2 क्या है वो 3 को रिलेट कर रहा है। किस जो हम यहाँ पे देखेंगे अगर R1 की बात करें कि जो 1 है वो 2 को रिलेट करेगा और 2 किसको करेगा, वो 3 को रिलेट करेगा। सो दिस बिलोंग्स टू R1। मगर अगर हम देखेंगे 1 और 3, क्योंकि अब क्या आना चाहिए, अगर 1 हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 अगर रिलेट कर रहा है 2 को, सो 2 किसको रिलेट करना चाहिए, 3 को। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी 1 किसको रिलेट करना चाहिए, दिस इंप्लाइज 1 शुड बी रिलेटेड टू 3। सो मगर जो ये 1 जो रिलेट कर रहा है 3 को, ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है R1 में, इसलिए ये क्या होगा, ये जो है ये रिलेशन जो R1 है ये नॉट सिमेट्रिक है। मगर अगर हम R की बात करेंगे, जो R की बात करेंगे यहां पे अगर हम देखेंगे ये क्या करेगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज यहां पे
सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये 2 है वो किसको रिलेट, अगर ये जो 2 और 1 है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 किसको रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो 2 है वो रिलेट कर रहा है 1 को, ये एक मिनट, ये 2 जो है वो रिलेट कर रहा है 1 को। सो मीन्स अगर 2 जो है वो रिलेट कर रहा है 1 को, और 1 किसको रिलेट कर रहा है 3 को, तो 1 किसको रिलेट कर रहा है 3 को। सो यहाँ से हम शो कर सकते हैं कि 2 किसको रिलेट करना चाहिए 3 को, तो दिस इंप्लाइज 2 रिलेट्स टू 3। सो दिस मीन जो ये आर है ये ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस मीन्स दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मगर जो ये R1 है यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो R1 इज नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट इज द एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सो a relation R on a set A is called antisymmetric relation if A is related to B and B is related to A implies A is equal to B। या हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a relation R on a set A is called antisymmetric if AB belongs to A and A is not equal to B। AB किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को कर रहा है, और A B के इक्वल नहीं हो, एंड क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर्ड पेयर AB है वो R को बिलोंग करेगा इफ इम्प्लाइज जो AB है, दिस मीन्स जो उसका ऑर्डर्ड पेयर BA है, दैट शुड नॉट बी that should not be in R, or we can say that the ordered pair B is that not belongs to R। so ऐसे रिलेशन को भी हम क्या कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास सेट ए है, हमने 1 2 3 इसमें लिए हैं, ये एलिमेंट्स हैं, और ये हमने इसके ऊपर रिलेशन आर डिफाइन किया है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सिंस जो 1 2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो आर को बिलोंग कर रहा है, एंड 2 1 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, मगर जो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं है। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो हेंस आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि एज पर डेफिनेशन वहां पे क्या आना चाहिए, 1 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम R1 की बात करेंगे, एक और हम इसके ऊपर हमने ये एक रिलेशन डिफाइन किया, दैट इज 3 3। सो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। Similarly, next is the compatible relation. So a relation R in A is said to be compatible relation if it is reflexive and symmetric. So अगर ये reflexive होगा और symmetric होगा तो ऐसे relation को हम क्या बोलेंगे, compatible relation. Then it is circular relation. A relation R is called circular if A is related to B and B is related to C, implies C is related to A. So ऐसे relation को हम क्या कहेंगे, circular relation. सो पेपर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल विच इज ऑफ ए सेट विच इज रिफ्लेक्सिव, और वी कैन से जो रिफ्लेक्सिव होगा ट्रांसटिव नहीं होगा, या ट्रांसटिव होगा वो रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, या एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा ट्रांसटिव और रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, आपने इनके ऊपर एग्जाम्पल्स क्या करना है, हर एक एग्जाम्पल जो मतलब जो होंगे और नहीं होंगे वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपने क्या करनी है, फॉर्म करनी है और वो याद रखनी है, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, पेपर में इसको यूज कर सकते हैं। सो अब हम ये जो हमने अभी हमने रिलेशंस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, कुछ डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ ली है। सो थैंक यू।